You are live. तो लाइव तो कर दिया। देखो आया, चेक किया, आगे कि नहीं आया। आ गया। Welcome and Assalamu alaikum to Friday Hour with APSS. And today we have a very competent person in safety and securities, internationally certified, Zuhair Kazalbash, with us. And he is very well known in internationally and nationally for his capabilities. Currently, he is engaged with an international organization, British Council, as safety and security personnel. And he will introduce himself in detail. I'll hand over to Zuhair. Zuhair, welcome to the show. प्लीज काइंडली थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए हमारे व्यूअर्स को। और हम आज आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के ऊपर, जो आज आपका टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट अस नो व्हाट इट इज अबाउट। फर्स्ट टेल अस समथिंग अबाउट यू। Thank you so much, Raisa, and it's really an honor, and thank you so much for giving me this opportunity to be on this very honored and auspicious forum. I'm very humbled by the introduction you have just made, and viewers जितने भी हैं हमारे, अस्सलाम वालेकुम, good evening, good morning, depending upon wherever you are located right now. So in an hour or so, मैं जो हूँ आपके सामने developing organizational resilience through crisis management and business continuity planning के बारे में बात करेंगे. It appears to be a bit dry subject, but depending upon the current circumstances, I think this is a very pertinent and very relevant subject. I will try to make it as sort of engaging as possible. But before we go ahead, जितना रईस भाई ने कहा कि let me introduce myself. I'm Zuhair Raza Kazalbash. My career so far, I've served in the Pakistan Army for about 13 years. और उसके बीच में I was seconded to the United Nations as a peacekeeper, and also I have served in Pakistan Rangers. Since following my early voluntary retirement in 2011, after completing my staff course, I joined Wari Telecom, and then I moved to Philip Morris International. And currently, I'm working with British Council for last more than 6 years as I'm head of security and risk, and also the National Lead for Health and Safety. मैं इससे साथ साथ आपको अपनी इन परस्यूट ऑफ माय सेल्फ डेवलपमेंट के मैंने क्या क्या अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अचीव किया. इट्स नॉट कंपनी की मशहूरी के अलावा साथ साथ मकसद है कि जस्ट टू मोटिवेट maybe the new joiner to the security industries, and rather everyone, there is never, it's never enough and it's never too late to actually work on yourself and to develop yourself in your profession as well. So I have obtained certified protection professional certification from ASIS. I've done international general certificate in management of health and safety from NIBOSH UK, and from Pro Trainings UK I've
obtained the certified uh, trainer status, specifically in first aid and health and safety, and also mental health. I'm currently enrolled in the level 6 diploma in security management from ISMI UK. I'm also a certified member of John Maxwell team, and a certified leadership coach and trainer. Um, I'm a member of SS, a member of the Risk Management Society, and also a member of the Security Institute. And finally, again, थोड़ी सी company की मशहूरी, but I've recently launched my first two ventures, Excalibur and MindArt. Why they are pertinent for today is Excalibur जो है, this is more regarding the organizational resilience through developing the skills, the individuals, and MindArt जो है, this is more about your personal and mental resilience. It is the mental health service company, which is giving counseling, psychotherapy, and coaching services as well. So this was all about myself. And sorry if it was a bit of bragging, but माशाल्लाह सर ज़ुहैर, आपका बड़ा रिच बैकग्राउंड है और you are quite rich in certifications and education, and we are looking forward, and let's start on today's topic. thank Uh, you so much, sir. So Nelson Mandela ने कहा कि the greatest glory in living lies not in never fail, falling, but in rising every time we fall. सो जो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंस, वो भी इसी तरह है कि एट टाइम्स both as individually and even organizations, they fail to foresee a crisis coming in, or something which may disrupt their operations. But it is not about that, disruption, but the early recovery as soon as possible. हमने अपने जो recent हमारा जो context है COVID-19 का, उसमें भी देखा, a lot of organizations, their operations were disrupted. A lot of organizations which were resilient, they could again stand up on their feet and resume their operation. But we have seen globally that a lot of organizations, they could not see the light of the day again. So much laying off, financial crisis, organizations बंद हो रहे हैं, different businesses. So this is mainly because people and the organization failed to foresee such a big level of crisis. किसी ने भी नहीं इतना level सोचा था, but all those organizations which has resilience in them and they had plans, they could again stand on their feet. So moving forward, before we go to, what is resilience? If you can write on your comments box, so please do write, what do you think resilience is? What does resilience mean to you? However, इसकी जो एक academic definition है, वो कहती है कि resilience has been defined by most as the ability to recover from setbacks, adapt well to change, and keep going in the face of adversity. It's not about falling, but standing up when you fall. So it's ability to recover from the setbacks and then adapt to the change, and then keep going in the face of adversity. I think this is so pertinent to our today, that जो हमारी जो COVID-19 का जो हमारा pandemic है, उसमें we need to recover and we have to adapt to जो लोग कह रहे हैं कि जी the new normal, and then keep on going, because this uninvited guest is here to stay for a foreseeable future. Since जो हमारा पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन जो रेजिलियंस है, वो इट्स अ सेपरेट टॉपिक, तो वी माइट कभी मौका मिला तो बात करेंगे. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंस. सो व्हाट डज ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंस मीन? जो रेजिलियंस की डेफिनेशन है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू एंटिसिपेट, prepare for, respond, and again adapt to incremental change and sudden disruptions
in order to survive and prosper. ये भी वही है कि जी anticipate means that you assess and anticipate कि क्या क्या crisis आ सकते हैं, क्या क्या events ऐसे हैं जो disrupt कर सकते हैं, and then be prepared for them with planning, जो हम आगे बात करेंगे, and then during such crisis respond करेंगे and then adapt to the change, जो भी change environment होगी, जो gradual और sudden change होगी, उसके हिसाब से adapt करें organizationally and then keep on surviving and prosper. A lot of people they talk about कि जी जो business continuity, crisis management, risk management, corporate management, तो जो risk management है, business continuity planning and crisis management, मैं इनको कहता हूँ जी the siblings. There are the 3 siblings in the larger family of corporate management. However, the business continuity planning, crisis management, they're a part of risk management, which is overall a segment of corporate management. Coming over to the incident and crisis management. तो incident and crisis जो है ना वो काफ़ी जगहों पे मैंने भी देखा है, even professionals there's a lot of confusion के when to use incident, when to use crisis. तो जो definition है वो कहती है जी कि an incident is an adverse event that might cause disruption, loss or emergency, but which does not mean that the organization's criteria for or definition of a crisis means और जो crisis है वो कहता है जी abnormal and unstable situation that threatens the organization's strategic objectives, reputation or viability. This is as per the British Standard 11200 of 2014. कहने का मकसद ये अगर आप इन दोनों definitions को देखें तो it depends upon आपकी जो ability है to sustain any event. अगर एक ऐसा event है जो organization की existence, उसके operations जो है को इतना ज़्यादा impact नहीं कर रहा, it is not bringing that loss or emergency जिसके ऊपर organization की existence जो है जो reputation है, उसके strategic objectives हैं, उन पे impact आ रहा हो तो वो उस organization के लिए incident होगा. Whereas इसी तरह का एक और event जो कि अपनी abnormality की वजह से उस organization को financially और maybe because of to its reputation और उसके existence को threaten कर रहा है, वो उसके लिए crisis होगा. However, अगर इसको हम देखें तो ये हर एक जहां आप खड़े हैं, जहां आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कितनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से ये दोनों इंटरलिंक हो सकता है किसी के लिए जो एक इवेंट इंसिडेंट है वो किसी और के लिए क्राइसिस हो. यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेल्स ऑफिस है, अगर उसकी वो उसका एक्सेस बंद हो जाता है या कुछ उसके अंदर बिकॉज ऑफ एनी इंसिडेंट, एनी नेचुरल डिजास्टर समथिंग, उसकी एक्सेसिबिलिटी होती है, तो वहाँ का जो सेल्स मैनेजर, जो आपका एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर होगा, उसके लिए इट वुड बी बिग क्राइसिस. वेयरएज आपकी कंट्री मैनेजमेंट के लिए, मे बी आपकी रीजनल और इवन ग्लोबल मैनेजमेंट के लिए इट वुड बी जस्ट एन इंसिडेंट. तो डिपेंडिंग अपॉन क्या उसकी थ्रेट है, वी यूज इंसिडेंट एंड क्राइसिस. But we will both be talking, I'll be talking on both incident and crisis because dealing with both can, in most of the cases would be the same. What are the objectives of incident crisis management? I think जो है हम लोग डेली बेसिस पे भी अपने इंडिविजुअली भी अपनी हर लाइफ में छोटे छोटे क्राइसिस और इंसिडेंट्स से गुजर रहे होते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंसिडेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट जो है, एन इफेक्टिव इंसिडेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? दे प्रिजर्व लाइफ. ऑफ कोर्स द foremost important for any organization is to preserve life of their staff, employees, their customers, their stakeholders, whosoever they come in contact with, जो उनसे जो है impact हो रहे हैं, whosoever are under their duty of care, जो भी उनकी ड्यूटी ऑफ केयर में है, उनकी प्रिजर्व करना लाइफ. एंड मेंटेन ऑपरेशंस, ऑफ कोर्स जो है जो डिस्ट्रप्शन है उसको कम से कम करना. अपने जो एसेट्स हैं, बोथ फाइनेंशियल, फिजिकल एसेट्स, उनकी प्रोटेक्शन, एंड टू अपहोल्ड ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन कि जी ओवरऑल
जो कोई भी इंसिडेंट ऐसा हो जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन का को पोटेंशियली डैमेज कर सकता हो, तो उसके लिए इंसिडेंट क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है टू सस्टेन योर ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन. So let's talk about incident crisis management framework. What is the framework of incident crisis management? So आपने देखें, एक तो है प्रिपेयर है, विच इज प्री इंसिडेंट और क्राइसिस, जो नॉर्मल आप कहते हैं जी पीस टाइम्स में. एंटिसिपेट, जो हमने पहले बात की डेफिनेशन में आया, एंटिसिपेट करें. इसके अंदर आप you have to identify those potential events which can cause disruption to the operations of the organization. Then assess है to analyze through evidences in the past कि जी इनसे क्या impact और आ सकता है, क्या जो है जो डिसरप्शन आ सकती है, और उसकी बेसिस पे प्लान्स फॉर्मुलेट करें एंड टू कीप योर सेल्फ प्रिपेयर, इंश्योर रेडीनेस के वो जो प्लान्स हैं in case any incident comes, it happens, so the organization is somewhat prepared. And then review and learn का process, continuous improvement का जो process है, that is inbuilt. कई दफ़ा होता है कि जी organizations just because of the audit requirement वो एक incident crisis management framework एक plan बना हुआ है, बस वो archives में पड़ा हुआ है जो audit के लिए, but they don't review and they don't learn out of the outcomes and experiences. That's why every time जब भी कोई नया crisis या नया incident होता है तो दोबारा से we go through the same rut, जो है disorganization होती है, काफ़ी जगहों पे नज़र आती है. But when the crisis is happening, so you have to respond and respond quickly, to adapt to the changing environment, to adapt, respond to the incident, ताकि आपकी जो impact है, जो उसका जो damage है, जो loss है, उसको आप curtail कर सकें. And then your efforts should be towards recovery and resumption of the normal operation as soon as possible, depending upon the, of course, the situation. तो ये एक journal incident and crisis management का जो है ये framework है, जिसके ऊपर पूरा जो incident crisis management है वो बेस करती है और इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है. जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि इंस्टेंट क्राइसिस मैनेजमेंट, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट, दे आर वेरी इंटरलिंक्ड. तो यही आप जब आगे हम बात करेंगे, इट विल बी द बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग विल आल्सो बी लिंक्ड टू दिस इंस्टेंट क्राइसिस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. ये एक इंस्टेंट क्राइसिस रेजोल्यूशन साइकिल है कि जब समथिंग हैपन, जब एक कोई इंसिडेंट होता है, तो दिस इज बेसिकली एन साइकिल कि जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो यू विल बी एबल टू manage or handle the incident or crisis in a more orderly and organized fashion. जैसे सबसे पहले you have to gather the information कि हुआ क्या है, what is actual the stage और incident की dimensions क्या हैं, उसका following by its impact assessment कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या आपके जो हमने बात की कि जो आपके प्रिजर्व लाइफ है, जो पीपल हैं, आपके ऑपरेशंस हैं, एसेट्स, रेपुटेशन, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, एंड आपके जो इनिशियल रिस्पॉन्स है टू curtail, to limit the impact of that damage, वो आपके impact assessment में आता है. Then आपके options क्या हैं action के, depending upon the situation, following by the formulation of an action plan कि अच्छा जी अब हमारी organization ने इस crisis से निपटने के लिए ये हमारा जो course of action होना चाहिए, followed by आप अपने different जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट लोग जो इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने उस एक्शन प्लान पे काम करना होता है, उनको आप इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं. फॉलोइंग बाय टाइम आउट एंड रिव्यू. टाइम आउट मींस कि देन यू एक्चुअली गिव टाइम फॉर पीपल टू एक्ट ऑन दोज इंस्ट्रक्शंस, एंड देन जब वो काम जो भी आपने एक्शन लिया होता है, देन यू रिव्यू कि उसका इम्पैक्ट क्या है, वेदर देयर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दैट action taken, usko hum are we going towards the resolution of that incident or crisis, or we need to change the course. So usme based on the impact और उसकी जो repercussions हैं,
you show flexibility and you should be ready to change the course of action and आपको उसमें अपनी action को curtail आपको alter करना पड़ता है and then यही cycle जो है चलता रहेगा based on every information coming in जब तक you're not sure that the crisis incident has been de-escalated or it has been resolved. These are the phases of the crisis management जिसमें मैंने कहा कि जो पूरा जो उसका life cycle के अंदर ये एक first of all there will be an initial response जैसे incident हुआ या something happened आप ने initial response देना है जिसमें आप you will take account of people जैसे मैंने कहा सबसे पहले preserve life करना है आपने you have all the people under your duty of care उसके लिए आपने check करना है कि जी everyone is safe so there are different tools available जैसा different organizations में use the telephone tree जिस तरह दरख्त होता है उसके डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं तो टेलीफोन ट्री में इंस्टेड वन पर्सन HR का बंदा या सिक्योरिटी का बंदा इफ दे आर चेकिंग एवरी पर्सन कि हाँ जी एवरीवन वाज ओके सो जो टीम लीड्स होते हैं मैसेजेस कैस्केडेड डाउनवर्ड्स जो विद इन द टीम और टीम्स उनको अपवर्ड्स जो है अपनी वेलबींग का और इफ देयर ओके वो मैसेज ऊपर जाता है simultaneously all are being accounted for क्योंकि इसके अंदर initial response में आपके timings are very critical so you have to take account of people and then take actions to limit the risk of people assets operation reputation जिसका मैंने पहले आपसे कहा ये initial response में आता है फिर second इसका phase है control and governance जो कि action phase है आपका इसके अंदर आप इम्पैक्ट रिस्क असेस करते हैं डिफरेंट आपकी यहाँ आपकी जो क्राइसिस टीम मीटिंग है वो स्टार्ट होती हैं देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लॉग जो है आपका वो आप इनिशिएट करें कि वट एवर इंफॉर्मेशन इज कमिंग उसको आप लॉग करें जो डिसीजन मेकिंग है मीटिंग्स की जो मिनट्स हैं वो रिकॉर्ड होते हैं ताकि आगे चल के अगर कभी कोई लीगल रिक्वायरमेंट होती है ऑडिट रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए जो logs हैं they are very important. As we all they say कि there is no right or wrong decision, there is timely or untimely decision. So there could be circumstances where a crisis management team or the leader of the crisis management team takes a decision जिसका बाद में कोई नेगेटिव रिपरकशंस आ जाएं तो उसको डिफेंड करने के लिए द क्राइसिस लॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जी ऑन व्हाट बेसिस दैट डिसीजन वाज मेड कि जो इंफॉर्मेशन उस वक्त अवेलेबल थी एंड दैट कोर्स ऑफ एक्शन वाज डिसाइडेड एंड देन बाद में अनफॉर्चुनेटली उसका जो भी रिपरकशंस निकले तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली स्टार्ट द लॉग एंड रिकॉर्ड ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द क्राइसिस मैनेजमेंट फिर इसी फेज में वर्किंग स्ट्रेटजीज होती हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान अगर इन्वोक करना है सिचुएशन परमिट करती है तो वो इसी पे होता है एंड देन देयर माइट बी स्टाफ मेंबर्स हु वुड नीड सपोर्ट एंड वेलफेयर उनको देखा जाएगा एंड कम्युनिकेशन प्लान्स जो हैं वो फाइनलाइज एंड एग्री होते हैं कि इंटरनली एंड एक्सटर्नली आपके जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन कितनी फ्रीक्वेंसी में दी जाएगी और इसी तरीके से जो इंटरनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन है स्टाफ मेंबर्स के साथ उसको बिकॉज आपने देखा होगा डिफरेंट जो भी हमारा करंट सिनेरियो भी है जिसमें जो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन दी जा रही है टाइम्स a lot of work is being done but since there is no update तो लोगों को नहीं लगता कि कुछ हो रहा है इसलिए जो frequent updates हैं to internal staff as well as the senior stakeholders and also अगर जो हायर हेडक्वार्टर्स हैं उनको भी आपको इन्फॉर्म रखना पड़ेगा तो कम्युनिकेशन इन क्राइसिस मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी इवन रेपुटेशनल आपकी पब्लिक जो फेस है उसको मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन प्लान एंड अब आजकल के दौर में बिकॉज विद ऑल द सोशल मीडिया एंड डिफरेंट चैनल्स अवेलेबल आई थिंक कम्युनिकेशन is very important आपको your communication team has to be very very strong to keep an eye on all the the forums like the social media के हैं कि if there is anything तो उसको कैसे response करना ठीक है से recovery and resolution जब when the situation जो है इस phase में जो आप लोग
स्ट्रेटजी जो है वो डिवाइस करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करना एंड मॉनिटर कीप मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड जो है जैसा मैंने पहले कहा था, डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन सिचुएशन चेंज द कोर्स ऑफ एक्शन, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए। इसी में बी प्रिपेयर टू डी एस्केलेट व्हेन सिचुएशन परमिट्स। जब आहिस्ता आहिस्ता कई दफ़ा होता है, मैंने नोट किया, आपने भी देखा होगा कि शुरू में जब क्राइसिस होता है वो उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होती है एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर एनर्जाइज और क्राइसिस मीटिंग्स हो रही हैं। फिर जब वो प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाता है तो डेली से फिर वो वीकली मीटिंग्स होती हैं, फिर वीकली से फोर्टनाइटली, फिर मंथली, डिपेंडिंग ऑन कि कितना जा रहा है, जितना भी आप देखें 4-5 महीने से ये जा रहा है। जो फिर डी एस्केलेशन का जो फेज है वो बहुत मर्ज हो जाता है, एक वो नॉर्मलसी आना शुरू हो जाती है। जो आपका क्राइसिस मैनेजमेंट का जो साइकिल है, जो पूरी आपकी जो वो टीम जो और आप वो पूरी जो एफर्ट थी, वो एक फॉर्मली क्लोजर नहीं होता उसका। तो इसके बहुत ज़रूरी है कि टू डी एस्केलेट, ताकि क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर सब लोग आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अलर्ट स्टेज हुई है, अलार्मिंग स्टेज चल रही है, तो उसको आपने सिचुएशन के हिसाब से डी एस्केलेट करके एंड देन फाइनली इट हैज़ टू कम टू अ क्लोजर एज वेल, followed by a structural debrief। ये बहुत important है, और ये बहुत even बड़ी organizations जो हैं वो they fail to do that at times, कि after crisis management जब हो जाता है सब ठीक ठाक तो बस तालियां बज गई, okay well done, accolade, सब कुछ हो गया, and then everyone goes back to their own work, but they don't look back कि अच्छा कैसे हमने how what did we do right or what we could do better or what we did wrong. I think it's very important, but at times it's very difficult also to critically review yourself, but it is very important कि structural debrief हो कि क्या क्या हुआ, कैसे बेहतर हो सकता था, कहाँ गलतियां थी, और अपने जो आपके प्रोसेसेस हैं वहाँ उसके अंदर क्या जो है फ्लॉज हैं, गैप्स हैं, जिनको फिल किया जा सकता है, ताकि इन फ्यूचर अगर जो आपके इंसिडेंट क्राइसिस मैनेजमेंट करनी पड़े और जब एनी काइंड ऑफ क्राइसिस, तो उसके अंदर आपको आसानी हो उससे उसको मैनेज करने के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। So just to give you एक basic कि क्या क्या roles जो and responsibility of a crisis team हो सकते हैं। different organization have different इसके अंदर इनके formats हैं, but at times ये देखा जाता है जो भी बस boss है, जो CEO है, वो है, और एक उनकी किचन कैबिनेट है, जो लोग हैं वो they are dealing with it और as and when requirement, but जैसा मैंने कहा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी जितनी भी डिसीजन मेकिंग है इट हैज़ टू बी लॉग्ड एंड देयर हैज़ टू बी अ फॉर्मल वे ऑफ डीलिंग विद इंसिडेंट क्राइसिस इन एन ऑर्डरली फैशन, ताकि एक आपकी एक ऑर्गेनाइजेशनल हिस्ट्री भी बन रही है एंड देन इन नेगेटिव रिपरकशंस जो हैं उनको भी कटेल किया जा सकता है। इफ़ देयर आर एनी लीगल फॉल आउट्स तो वो भी आप उसको जो है सेव कर सकते हैं। उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट of course leader of a crisis team, your overall strategic direction, and they will be a primary source of decision making। उसके अलावा एक coordinator रखा जा सकता है। normally it's very useful जो even pre crisis days में and during crisis and post crisis जो basically organization of the team, ensuring the resources are available, the environment, मीटिंग्स जो हो रही हैं उनके लिए ऑल द रिसोर्सेज एंड देन ट्रेनिंग्स जो होनी है ड्यूरिंग नॉर्मल डेज, वो उसको जो कोऑर्डिनेटर है वो ओवरऑल आपकी जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखता है। देन लॉग कीपर, जैसा मैंने कहा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो लॉग कीपर है वो आपके मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड देन आपकी जितने भी जो इवेंट लॉग है उसको मेंटेन करना उसका काम होता है। एंड कम्युनिकेशन लीड, जिसे मैंने कहा दे हैव टू बी वेरी वेरी एफिशिएंट एंड स्पेशलिस्ट, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, लीगल, ऑपरेशन, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, जो कि वो अपने एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज के हिसाब से एडवाइस हैं। तो दिस कुड बी
a core team of crisis management, and depending upon the area, अगर कोई आपके जो different आपकी पूरी organization में कोई business है या कोई जो function जिसे कहते हैं department जो उस specifically उस crisis के का affected है, उसका जो impact उस business पे direct आ रहा है, तो उनकी जो representative है, they can also be part of this crisis team. So जो पूरी कहानी मैंने आपको जल्दी से सुनाई, आई थिंक उसमें से मेरा जो बेसिकली आई एम ट्राइंग कि जी मैं वो समंदर को कूदे में बंद करूं. सम ऑफ द की पॉइंट जो हमने करने हैं जहन में रखने ज़रूरी हैं, वो ये कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज़ क्रिटिकल. जो काफ़ी जो डिफरेंट क्राइसिस हैं उसमें लीडरशिप जो है वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है उसमें. स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज़ वेरी क्रिटिकल, एंड the decision making process and the nerves and the ability of the leader to actually make strong decisions, and at time with unpopular decisions, is very essential for a better incident crisis management. आपने देखा during this pandemic also, the countries which have strong leadership, focused leadership, they apparently have been able to deal well with this global crisis, whereas the countries which have weak leadership, not focused leadership, are facing a lot of challenges. Secondly, आपका जो initial response है, that's the foundation for the crisis resolution. जो आपका initial पहला step है to curtail the expand of the crisis to in the limits of आपकी जो initial आपकी जो impact assessment है, that would actually set the foundation, and it would create a pathway for you to reach to a very effective conclusion of this incident and crisis management. Battle rhythm, again फौजी होने की वजह से ये वर्ड बीच में आ गया. बैटल रिदम इज इंपॉर्टेंट. बैटल रिदम क्या होती है कि जी आपने यू हैव टू सेट द टोन ऑफ द क्राइसिस मैनेजमेंट के. शुरू में जैसा मैंने कहा कि जी डेली बेसिस में हर 2 घंटे के बाद एक क्राइसिस मीटिंग हो रही है कि जी वो क्या हुआ, मैंने वो ऑर्डर दिया था, क्या बना. एंड देन एक टाइम आता है कि जो अगर क्राइसिस प्रोलॉन्ग हो जाता है, उसमें आपको एक फ्रीक्वेंसी जो है वो सेट करना बड़ा ज़रूरी है कि ओके जी हमारी डेली इतने से इतने बजे एक मीटिंग होगी. अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इतने इतने घंटों के बाद होगी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टाइम टू दोज पीपल टू टेक एक्शन. अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं, उन्होंने जाके अपनी टीम्स को आगे ऑर्डर पास करना है, देन दे हैव टू ensure कि एक्शन इज बीइंग टेकन, और फिर वापस फीडबैक लेनी है, अपडेट लेना है, ऊपर आके दोबारा से उस क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम में उन्होंने अपडेट देना है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम टाइम ऑल्सो, एंड ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ दोज पीपल जो इन्वॉल्व हैं, जो उस क्राइसिस मैनेजमेंट में हैं, उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी जो फटीग का एलिमेंट है उसको देखना बड़ा ज़रूरी है. तो उसके लिए कई जगहों पे आपके जो मैंने अभी आपको रोल्स बताए, उसमें ऑल्टरनेट रोल्स भी जो हैं वो ट्रेन किए जाते हैं. ऑल्टरनेट लॉक कीपर, अगर एक लॉक कीपर ऑफ कोर्स अवेलेबल नहीं है, छुट्टियों पे है, कुछ और है, तो उसकी जगह एक और बंदा जो पहले से ट्रेंड है, इसी तरीके से कोऑर्डिनेटर, इवन ऑल्टरनेट लीड्स जो हैं या डिप्टीज 1 2 3 के कौन अगर नहीं अवेलेबल तो उसकी जगह कौन जगह लेगा. तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू सेट द बैटल रिदम. Just again, I'm saying the effective communication is essential. आप अगर बड़ी से बड़ी कंपनियां जो हैं जिनको अगर प्रॉपर कम्युनिकेट अपनी पब्लिकली जो है वो अपना एक मेंटेन नहीं कर पाती, तो वो दे लॉसेज एंड रेपुटेशन डैमेज उनका ज़्यादा होता है. एंड ऑल दोस ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ओपन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर करते हैं, उनका जो लॉस डैमेज है वो कम होता है. आई डोंट नो, मुझे अभी याद आ रहा है कि अगर आपने कभी किसी ने बहुत पहले, आई थिंक इट वाज 80s, टेलेनॉल डेथ्स के नाम से एक केस स्टडी है जिसमें टेलेनॉल जो लोग ट्रैवल किया हुआ है, इट्स जस्ट लाइक हमारी जिस तरह पैनाडोल वगैरह होती है, उसी तरह की एक दवाई है.
देवर इंसिडेंट की जब टाइलनॉल की वजह से लोगों में डेथ्स होना शुरू हो गई थी अमेरिका में, एंड इट वाज अ वेरी ह्यूज ह्यू एंड क्राई। और जो ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसको बिल्कुल इतना था कि शायद इट विल सीज टू एग्जिस्ट। तो उन्होंने ऑफ कोर्स फिर जो अपनी पूरी जितनी भी थी वो दवाई पूरे अमेरिका से उन्होंने उसको रिकॉल किया। एंड देन उनका जो सीईओ है, ही केम ऑन नेशनल टीवी एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली, उसने बड़ा अपोलोजाइज किया ही पूरी जो भी अमेरिकन नेशन से कि जी दे डिड समथिंग रॉन्ग, ऑफ कोर्स इट वाज अनइंटेंशनल। एंड आई थिंक उन्होंने उसको कंपनसेशन वगैरह की भी बात की। एंड दैट इज व्हाई इट वाज लोगों ने कहा कि इट वाज सिंसियर एंड ऑनेस्ट अपॉलॉजी, एंड इट वाज अ करेज टू फेस द पब्लिक। तो दैट्स व्हाई वी टेलनॉल अभी भी चल रही है, और अभी भी वही प्रोडक्ट जो है मार्केट में जो है वो है। इसलिए आई थिंक जितना भी हम एम्फसाइज करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वो कम है। फ्लेक्सिबिलिटी इज द की इन ओवरऑल इंसिडेंट क्राइसिस मैनेजमेंट। इसलिए जैसे मैंने एक वर्ड निकाला है कि यू मस्ट बी रिजिडली फ्लेक्सिबल, यानी कि वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल इनफ टू चेंज द कोर्स ऑफ एक्शन एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जिस तरह डेफिनेशन में भी कहा है कि जी अडेप्ट टू द चेंज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्लेक्सिबल। लॉ कीपिंग कैन प्रिवेंट लीगल रिpercussions, and this is very important that differentiate between facts and assumption when making decisions. Um, a lot of times we have a bit of a picture and we try to make a whole picture out of that bit of information, which in most cases might be a wrong picture. So unless you don't have a clear picture, even if you have to make a decision, if you are forced to make a decision, make it clear that on what basis you're making that decision. Either it's an assumption or is it a fact, right? So it's very important to differentiate between both, so that अगर उस डिसीजन का एक नेगेटिव रिpercussion आता है इन फ्यूचर और इन ऑडिट, तो वो यू नो the law keeping और उसका वो जो रिकॉर्ड है कि what was assumption, what was fact, वो आपको बताएगा। जैसे हम we always jump on conclusion without एक बात सुनी और पूरी हमने वो कर दिया। I think that culture should not be part of that incident crisis management. Facts and assumption need to be differentiated, ताकि आपने clear picture आपको हो। At times you have to actually zoom out to get a whole picture. That's very important. So crisis management के लिए there are certain tools जो various organizations use करती हैं, they can be very useful। जिस तरह telephone tree की मैंने बात की, you have to maintain an updated telephone tree, इसमें लोगों के contact numbers और different teams के हिसाब से, ताकि जो भी आपका security manager है या जो आपका जो भी senior है जिसकी responsibility है to account for all people, वो एक message भेजे और it trickles down। List of next of kin in case if a staff member is impacted out of due to the crisis, unki next of kin। Although a lot of organizations they do have this data, but uski accessibility in crisis, that is important। आपको ये देखना जरूरी है, एक process होना चाहिए कि अगर क्राइसिस होता है, इंसिडेंट हो है जहाँ आपको टाइमली बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो अवेलेबल होगी। कौन होगा जो टेलीफोन ट्री इनिशिएट करेगा, कौन होगा जो नेक्स्ट ऑफ किन से जो है अप्रोच करेगा, बात करेगा कि जी हम आपके जो भी है, आपका जो किन है, जो आपका हमारा स्टाफ मेंबर है, हम उससे रब्ता नहीं हो पा रहा। आइदर इट्स एचआर और सिक्योरिटी, दैट हैज टू बी अ प्रोसेस। प्रूफ ऑफ लाइफ क्वेश्चनर, आई थिंक जितने भी हमारे हैं सिक्योरिटी मैनेजर्स, वर्दी सिक्योरिटी मैनेजर, दे वुड नो प्रूफ ऑफ लाइफ क्वेश्चंस जो है, इट्स वेरी हैंडी इन केस अनफॉर्चुनेटली इफ एनी स्टाफ मेंबर और एग्जीक्यूटिव is kidnapped. So this is basically to ensure that the person is alive, and जो kidnappers जो हैं वो आप they're not making false claims. So ये proof of life questions होते हैं, जिसके अंदर वो question होते हैं जो कि आपको बहुत आपके टिप्स फिंगर टिप्स पे होते हैं, बट वो ऐसे क्वेश्चन जो आपके बिल्कुल आपको या आपके करीबी लोगों को ही पता होते हैं कि आपके नर्सरी की क्लास टीचर का क्या नाम था, या आपके जो है ना पहले पेट का क्या नाम था, या आपकी जो बचपन की पहली गाड़ी थी उसका क्या मॉडल था, लाइक दैट।
लॉग शीट एंड मीटिंग मिनट टेम्पलेट्स भी होते हैं जो आप अगर हैंडी रखें तो आपके लिए लॉग कीपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. देन देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज not very common. It's a trigger action response plan followed by incident response plans. So इस पे very quickly जो trigger action response plan है वो basically डिफरेंट ट्रिगर्स हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरनमेंट, उनकी बेसिस पे आप ऑर्गेनाइजेशन के जो है ना अलर्ट स्टेजेस होती हैं. लेवल 1 हो गया नॉर्मल, लेवल 3, लेवल 4 आप देखो जी, अलर्ट लेवल बढ़ गया, थ्रेट लेवल बढ़ गया. तो ये अगेन ये एक्सरसाइज ऐसी है जो कि एक बड़ी थॉरो एक्सरसाइज है, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज है, जिसमें आप पीस टाइम में डिफरेंट ट्रिगर्स के, अच्छा ये अगर पोलिटिकली अगर मिसाल के तौर पे लो लेवल ऑफ थ्रेट है, बहुत इक्का दुक्का, जैसे कराची में हम कराची नॉर्मल को कहते हैं कि इक्का दुक्का प्रोटेस्ट रोजाना हो रहे हैं, पावर आउटेज, वाटर शॉर्टेज, और प्रेस क्लब के सामने, तो वो एक नॉर्मल ऑपरेशन हैं एंड उसमें आपको कोई रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर ये लेवल जो है वो बढ़ता है, प्रोटेस्ट ज़्यादा होते हैं, अनरेस्ट ज़्यादा बढ़ता है, तो उसके हिसाब से आपकी जो ये अलर्ट लेवल स्टेजेस हैं वो बढ़ती हैं. ये डिपेंड्स ऑन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो रिस्क एपिटाइट है, जिसको रिस्क टॉलरेंस भी कहते हैं. इट डिपेंड्स ऑन दैट कि आपकी एपिटाइट या आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, जिसकी बेसिस पे आप जो है अपनी अलर्ट लेवल स्टेजेस जो हैं वो आगे करेंगे. उसके हिसाब से ही उन ट्रिगर्स के अगेंस्ट आपके एक्शंस होंगे एंड देन रिस्पॉन्सेज के आपने आइदर आपने अलर्ट स्टेज पे या अवे स्टेज पे आपने बीसीपी इन्वोक करना है, जिस तरह अलार्म स्टेज है उसके अंदर वैक्यूएशन है, जितने भी आपके फॉरनर्स हैं उसको आपने वैक्यूएट कर दिया, पाकिस्तान से बाहर चले गए, दफ्तर बंद हो गए एंड देन बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम इन टाइप की, वो डिपेंडिंग अपॉन आपके जो ट्रिगर्स हैं और एक्शन प्लान जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एग्री किए हुए हैं. इस तरीके से पीस टाइमिंग में जो जिस तरह मैंने बात की थी फ्रेमवर्क में कि प्रिपेयर करेंगे, अगर आप पहले से आपने कि जी व्हाट आर द इंस्टेंट रिस्पांस प्लान, खुदा खासा स्टाफ मेंबर और एग्जैक्टली विद किडनैप, तो क्या क्या आपके स्टेप्स होने चाहिए, कौन क्या करेगा, ताकि कोई एक ऑटोमेटिक एक रिस्पांस, एक चेन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए, इंस्टेड कि जी दोबारा बैठें अच्छा अब क्या करें, बिकॉज द टाइम इज ऑफ वेरी is critical, is very important during such incidents. Death of staff member, fire, IT disruption, bomb threat हो गई, आपकी नेशनल डिजास्टर है, प्रोडक्ट क्राइसिस, जैसा मैंने अभी आपको टेलनॉल का जो आपको एग्जांपल दी, एक्ट ऑफ टेररिज्म है, आपका एपिडेमिक या पेंडेमिक, जिस तरह अभी जो करंट सिचुएशन है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और या सिविल या पॉलिटिकल अनरेस्ट. तो ये जितने अगर आपसे पहले से ही इनके रिस्पॉन्सेज बने होंगे तो क्राइसिस मैनेजमेंट में दे विल बी वेरी वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव. Now coming over to the business continuity, linking, जिस तरह क्राइसिस मैनेजमेंट और इंसिडेंट मैनेजमेंट जैसा आपको मैंने कहा था, मकसद क्या है इस तमाम रिस्क मैनेजमेंट का, आपकी जो है, और आपकी जो क्राइसिस इंसिडेंट मैनेजमेंट का मकसद क्या है कि आपका जो बिजनेस है वो चलता रहे, या अगर रुका भी है तो जल्दी रिकवर हो जाए, एज लेस जो लॉस है या डैमेज है उसकी बेसिस पे, एज क्विकली एंड एज अर्ली एज पॉसिबल. खुदा ना खासा कुछ भी होता है तो यू रिस्पॉन्ड, यू रिकवर, यू रिज्यूम एंड यू रिस्टोर टू द बैक टू दैट सेम वाइटैलिटी जो आपने इंस्टेंट से पहले थी. So that's what the business continuity is. However, business continuity जो as per the ISO 22301 of 2012 कहती है कि जी it's a capability of the organization to continue delivery of products or services at acceptable predefined levels following a disruptive incident. तो आपने predefined levels जो हैं means के अगर disruption होगी तो कितने टाइम फ्रेम के बाद we can tolerate कि इतने अरसे तक ठीक है, इतने दिनों तक हम टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट उसके बाद जो है हमने अपने बिजनेस रिज्यूम्स करने करने, अदरवाइज जो है हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन हमें जो है ना ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ जाएंगे, अनपॉपुलर डिसीजन लेने पड़ जाएंगे. तो उसके लिए जो है दैट्स द एबिलिटी के ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू डिलीवरी. So what is the benefit of business continuity management? कि अगर आप प्लानिंग करते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी की एंड यू हैव एन इफेक्टिव एंड रोबस्ट बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, तो उसका फायदा क्या है ऑर्गेनाइजेशंस को?
Um, in most of the cases, in most of the part of the world, it is a legal requirement that you have a business continuity plan in place. Um, it also gives the organization an edge, to achieve market advantage. At times, जो ऑर्गेनाइजेशन जो मे बी जो जिनके लिंकेज पाकिस्तान की बात मैं अगर करूँ कि जिनके लिंकेजेस एक्सटर्नल इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं टू हैव सर्टेन ISO सर्टिफिकेशंस, जिसकी बेसिस पे यू कैन गेट मोर बिजनेस. तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एज पर जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उसको मेंटेन कर रही है, तो इट इज़ on a better place to get more business as compared to those organizations which are not following any business continuity management model. Again, it reduces the dependency on individuals. At times आपने organization में देखा होगा कि जी एक बंदा अगर छुट्टी पे है तो फिर काम ही रुक गया, जो आज ये बंदा नहीं आया, ठीक है. कई दफ़ा वो बेसिकली आपका जो किचन में चाय बनाने वाला होता है वो होता है, अगर वो किसी दिन नहीं आया तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम हो जाती है. बट ऐसा ही दे आर क्रिटिकल रोल्स जो कि उन पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है कि अच्छा आज ये बंदा नहीं आया या छुट्टी पे चला गया या कुछ हो गया, या तो वो बिजनेस कंटिन्यूटी इंश्योर करती है कि देयर इज नो क्रिटिकल डिपेंडेंसी, कि अगर जो है ना इट इंश्योर्स बिजनेस कंटिन्यूटी. सर ज़ुहैर, सॉरी टू इंटरप्ट यू. हमारे पास 15 मिनट्स बाकी हैं. बिल्कुल सर. तो उस हिसाब से आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है. थैंक यू वेरी मच. I'm keeping the watch. Thank you, sir. Thank you so much for reminding. And it prevents large scale damages and loss as well. So this is the again, as जिस तरह हमने कहा, ये this is जो पहले इंसिडेंट क्राइसिस मैनेजमेंट का लाइफ साइकिल था, दिस इज एक बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट का लाइफ साइकिल है, जिसके अंदर आइडेंटिफाई एंड एनालाइज. आइडेंटिफाई के अंदर रिस्क असेसमेंट्स के जो भी पोटेंशियल क्राइसिस हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, फॉलोड बाय द बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस के क्रिटिकल बिजनेसेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और उनका जो इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन और कैसे उनके लिए रिसोर्सेज एलोकेट करें कि जो उनको उनकी डिस्ट्रप्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग. फिर आप रिकवरी स्ट्रेटजीज डिजाइन होती हैं, एंड देन द प्लान इज डेवलप्ड, एंड देन मेजर जो है उसकी एफिकेसी ऑफ दैट प्लान. रिस्क असेसमेंट जो है, वी ऑल नो कि हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर रिस्क टू स्पेसिफिक एसेट्स depending upon the vulnerability or its impact. But I will not go in detail because risk assessment itself is a very comprehensive topic, and हम उसको बाद में कभी मौका मिला तो we can discuss because different models हैं. Talking about business impact analysis, ये जो है सॉरी बहुत ज़्यादा इस स्लाइड पे अंग्रेजी लिखी हुई है, बट इसका क्रक्स ये है कि इट प्रेडिक्ट्स जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऑफ डिसरप्शन कि एक स्पेसिफिक आपका जो बिजनेस फंक्शन है या प्रोसेस है उसके ऊपर, और जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करनी है कि ताकि उसकी रिकवरी जो है एज सुन एज पॉसिबल उस स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन की वो इंश्योर की जा सके. तो ऑल क्रिटिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ये जो हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाता है बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस में, एंड फिर उस स्पेसिफिक प्रोसेस की या उस प्रोडक्ट की या उस फंक्शन की जो क्रिटिकल डिपेंडेंसी है ऑन अदर फंक्शन प्रोसेस उसको डिफाइन किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है. फिर आपकी जो आपकी कौन से वो प्रोसेस होंगे जो इंश्योर करेंगे कि जी डिलीवरी कंटिन्यू रहे. फिर आपने जो मैक्सिमम टॉलरेबल पीरियड ऑफ डिसरप्शन है कि अच्छा जी ये टाइम फ्रेम है जिसमें हम एक्सपेक्ट अफोर्ड कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं डिसरप्शन, बट उसके बाद इट वुड बी वेरी क्रिटिकल दैट वी रिज्यूम दैट पर्टिकुलर सर्विस प्रोडक्ट और फंक्शन. And finally, business impact analysis जो है it highlights the resources available for that particular business function to recover and continue its delivery. बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के अंदर आप जब बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस जो है इट फीड्स इनटू योर डिजाइनिंग द स्ट्रेटजी अबाउट पीपल के अंदर जो है क्रिटिकल जो स्किल्स हैं, क्रिटिकल स्टाफ है जिनके आप जिनके बगैर जो है ऑफिस चलना बड़ा मुश्किल है, उनको आइडेंटिफाई करते हैं. इट लीड्स टू सक्सेशन प्लानिंग ऑल्सो
कि अगर कोई छोड़ के चला जाता है तो उसकी जगह कौन सा दूसरा बंदा जो है वो वी नीड टू हैव इट इन प्लेस। एंड देन स्पेशल नीड्स हैं, अगर कोई आपके ऐसे लोग हैं जिनको स्पेशल नीड्स रिक्वायरमेंट है इन स्पेसिफिक क्राइसिस वगैरह, तो वो हाईलाइट होते हैं। प्रेमिसेस हैं जिसमें आपके जब आप स्ट्रेटजी बनाते हैं रिगार्डिंग प्रेमिसेस, उसमें कि ऑल्टरनेट प्रेमिसेस हैं, अगर जो आपकी जो करंट प्रेमिसेस है इफ उसको एक्सेस या उसमें डिस्ट्रप्शन है तो कोई ऐसी जो है स्टैंड बाय ऑल्टरनेट प्रेमिसेस जिससे आप ऑपरेट कर सकें। इवन जो आपकी जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, जो प्लांट्स हैं, उसके अंदर की जो एक प्लांट अगर बंद होता है तो दूसरे प्लांट की जो अगर है इतनी कैपेसिटी के वो उसको सस्टेन कर सके। एंड देन उसकी जो एक्सेस जो है टू दैट स्टैंड बाय प्रेमिसेस, वो स्ट्रेटजी डेवलप होती है। एंड देन टेक्नोलॉजी के क्या रिलायंस होगी, आपके इंटरनेट, आपका जो है आपके लैपटॉप्स आप और जो है डिफरेंट इक्विपमेंट है जो इंश्योर करे कि ऑफ साइट जो है वो भी काम किया जा सकता है। एंड देन इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो बिजनेस इंफॉर्मेशन, जो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, उसका एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड, जिसना अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अगर आपने कोई बिजनेस, आपने कोई आपका शेयर पॉइंट है या आपका क्लाउड है, उसका एक्सेस फ्रॉम रिमोट लोकेशंस, उसके लिए स्ट्रेटजी। एंड देन आपके सप्लायर्स एंड पार्टनर्स हैं जो क्रिटिकल सप्लायर्स हैं, उनके साथ उनकी आइडेंटिफिकेशन, एंड देन उनके साथ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, डुअल कॉन्ट्रैक्टिंग बेसिस पे मल्टीपल आपने वेंडर्स जो हैं हायर किए हुए हैं, ताकि अगर एक को मसला होता है तो आप उसको दूसरे को आप जो है एंगेज कर सकें। एंड देन फाइनली स्टेक होल्डर्स हैं आपके, बोथ इंटरनल एक्सटर्नल, उनके साथ ये स्ट्रेटजी में जो बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर आप उनके लिए जो कैसे उनको आपने इन्फॉर्म रखना है ड्यूरिंग दिस होल बिजनेस कंटिन्यूटी स्टेज। जब ये स्ट्रेटजी बन जाती है देन यू मेक अ प्लान, जो जिसमें आप स्कोप ऑफ द प्लान है, एंड देन प्रोसेसेस एंड क्राइटेरिया ऑफ कब क्या ये प्लान, जो क्या क्राइटेरिया होंगे जब बिजनेस कंटिन्यू प्लान इन्वोक होगा, एक्टिवेट होगा। और स्कोप के अंदर भी एट टाइम्स जो आईटी डिस्ट्रप्शन है उसको सेपरेटली रखा जाता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन को सेपरेट एक उनके प्लानिंग होते हैं, वेदर इट कवर्स इट और नॉट। फिर अगेन की प्रोडक्ट सर्विसेज की इंडिकेशन, फॉलोड बाय आपकी जो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ सप्लायर्स, डिटेल ऑफ रिकवरी टीम एक्सेट्रा, और ये जो भी स्कीम है। एंड फाइनली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग एंड अपडेट। सर जुहेर, ये बस इस स्लाइड के बाद we'll have a couple of questions because some audience have asked some questions, viewers हमारे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, आप इसके No, बाद sir, there are a couple of slides left. I think just give me a couple of 2 minutes, sir. I think it's important. Okay. So we can, I can take the questions. अगर रह भी गया time तो separately, I'll be more welcome because I'll be covering COVID just very quickly. तो ये training test maintain मैंने आपको बता दिया कि it's very important कि आप not only those people who are involved in the crisis management, business continuity are involved, are trained, but also जो कि ऑल्टरनेट्स हैं जो कि पोटेंशियली इसका हिस्सा बन सकते हैं। एंड टेस्टिंग जो है, जिसमें आपकी लाइव टेस्टिंग है, वॉक थ्रूज हैं, एंड डेस्कटॉप एंड आपकी जो टेबल टॉप एक्सरसाइजेज। वेरी क्विकली एक जो जिसमें यान इनवाइटेड गेस्ट है, मैंने स्लाइड्स बोरो की हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट अमेरिका में। उन्होंने जो ये एक सर्वे किया है कि 32% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ये पेंडेमिक के रिस्क को कभी उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया वाइल दे वर बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए। उसमें भी जो जिन्होंने कभी उसको एज किया भी, उसमें भी 1/5 ऑफ दो ऑर्गेनाइजेशन नेवर डिड एनीथिंग अबाउट इट, के उसमें कोई रिसोर्सेज एलोकेट नहीं किए, कोई प्लानिंग ऐसा नहीं की। इसमें इन्होंने जो शॉर्टकम्स थी, जो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, बट जो चीज़ देखने में आई, कम्युनिकेशन ने इतना बुरा नहीं किया, आईटी सिस्टम्स प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं हुई। सर थोड़ा सा इसको हम कोविड के हवाले से लेते हुए एंड अप करने की कोशिश, रैप अप करते हैं, और फिर उसके बाद 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक तो है रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी, आपने एक टर्म यूज की थी, रिजिडली फ्लेक्सिबल, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें बिल्कुल मैं उस करता हूँ सर, जस्ट गिव मी अ मिनट से, ये 2 स्लाइडें रह गई। आई थिंक इट विल ताकि होगा, वी विल हैव कपल ऑफ मिनट्स, सो आई विल डू दैट। तो ये टेक्नोलॉजी जो है, ये एक चीज बहुत आई है कि टेक्नोलॉजी जो है इन एनी फ्यूचर सच क्राइसिस वुड बी ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड आगे, जो अगर हमने कोविड को देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस ने कैसे रिकवर करना है, जो वर्कफोर्स इम्पैक्ट
और रिटर्न टू वर्क जो कैसे हम लोग वापस आ सकते हैं, और बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्लानिंग। 3 अर्जेंट स्टेप्स जो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस को जो अभी तक जो है ना वो रिकवरी स्टेज में है, उनको देखने की ज़रूरत है कि दे हैव टू टेक स्टॉक एंड प्रिपेयर फॉर सेकंड वेव। सेकंड वेव भी आ सकती है एज सच, द सेम काइंड ऑफ डिस्रप्शन। इसको देखते हुए रिटर्न टू वर्क प्लेस प्लान्स और आगे का कैसे रीमॉडलिंग कर सकते हैं कि कंटिन्यूस वर्क फ्रॉम होम या आपको रीमॉडलिंग अ मिक्स ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम और रिमोटली और वर्किंग फ्रॉम ऑफिस। I can be contacted on these numbers अगर कोई ये कर सकता है, if anyone want to ask more questions. Thank you. Now I can come to the questions. पहला क्वेश्चन था, you have used a term rigidly flexible. थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें rigidly flexible को। और सेकंड क्वेश्चन will be, what is the difference between incident, emergency, crisis and business continuity? की डिफरेंस इसे आप छोटे उसमें फ्रेज में जरा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। अच्छा सर, जो पहला क्वेश्चन है वो आई नो मेरे किसी दोस्त ने पूछा हुआ है, वो मैंने जिस तरह लिखा था उसके यू हैव टू बी रिजिडली फ्लेक्सिबल। वो एक इट्स बेसिकली इट्स लाइटर टोन में एक टर्म है कि फ्लेक्सिबल आपने यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल रहने के लिए यू हैव टू बी रिजिड। आपने जो उसको रखना है फ्लेक्सिबिलिटी को आपने बड़ा रिजिडली अपने जो है ना उसको एम्ब्रेस करना। तो इट वाज मोर ऑफ अ एक टर्म थी कि रिजिडली फ्लेक्सिबल। अगर कंफ्यूजन क्रिएट मैं कह सकता हूँ रिजिडली फ्लेक्सिबल ये चीज है कि हम अपनी उसको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को हिलाए बगैर अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखें, मनूवरिंग बेसिक लॉज हमारे सेम रहें, लेकिन विद इन कंपनी थोड़े से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ले आए। सर ये भी कह सकते हैं, मेरे कहने का मकसद ये था कि फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट अबाउट रिजिडिटी, कि जो भी फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, कि जो भी आप कोई चेंज होगी, क्राइसिस होगा, वो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या एक्शन आप ले सकते हैं टू फेस दिस चैलेंज एंड रिकवर। तो उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। जिस तरह अभी काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आई नो फाइनेंस के जो लोग हैं वो कहते थे कि जी हम कभी वर्क फ्रॉम होम कर ही नहीं सकते, हमें तो ऑफिस आना बहुत जरूरी है, बट अभी दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। तो वो बट ओके, दे आर हैप्पी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, अभी जिस तरीके से टीचर्स हैं वो ऑनलाइन अभी टीचिंग क्लासेस हो रही हैं, तो पीपल आर अडैप्टिव टू चेंजेस। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो फिक्सेटेड माइंड फ्रेम से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अपने हमने देखा है सर, जो टेलीकॉम के एग्जांपल्स हैं। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, थैंक यू, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। एंड सेकेंडली जो इंसिडेंट है, इमरजेंसी क्राइसिस, मैंने एक्सप्लेन तो किया था। इंसिडेंट और जो क्राइसिस में फर्क है वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, कि वो अगर एक इवेंट है, बोथ आर इवेंट्स, एक इवेंट जो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा और इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस या उसकी फाइनेंशियल जो उसकी सॉल्वेंसी है या उसकी जो रेपुटेशन है उस पर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं आ रहा, तो वो इट कैन बी इंसिडेंट। और उसको इंसिडेंट को आप उसी जो है तरीके से मैनेज करेंगे, ऑल्दो द फ्रेमवर्क वुड बी सेम, बट उसका इम्पैक्ट कम है, उसका डैमेज कम है। क्राइसिस का जो डैमेज है, उसका इम्पैक्ट है, वो ज़्यादा होता है। वो आपकी को जो है आपकी रेपुटेशन को, आपकी एग्जिस्टेंस को, आपके ऑपरेशंस को, आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग को इम्पैक्ट करता है, उसको थ्रेटन करता है। तो वो आप उसके लिए क्राइसिस, तो मैंने जिसमें ये भी कहा था कि वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ वाक़ हैं। एक जो मेरे लिए इंसिडेंट है वो हो सकता है किसी के लिए क्राइसिस हो, और हो सकता है किसी का जो इंसिडेंट है वो मेरे लिए बहुत बड़ा क्राइसिस हो। तो वो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी क्या है और आपकी लेवल ऑफ रेजिलियंस कितना है। इसी तरीके से बिजनेस कंटिन्यूटी जो है वो ये एबिलिटी है कि आप ये जो क्राइसिस है इसको किस तरीके से सस्टेन करके कितनी जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं, ताकि आप वापस बैक टू दोज आप रिज्यूम कर सकें एंड रिस्टोर कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बैक टू द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशनल जो आपकी कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है। ये बिजनेस कंटिन्यूटी और इंस्टेंट मैनेजमेंट जो है, क्राइसिस मैनेजमेंट, दे आर इंटरलिंक्ड। जो इंस्टेंट मैनेजमेंट लीड्स टू बिजनेस कंटिन्यूटी। ज़हीर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे सर। ये एक इंसेंटिव हमने लिया, इनिशिएटिव लिया एपीएसएस के प्लेटफॉर्म से। व्हाट डू यू थिंक कि एपीएसएस का ये इनिशिएटिव कैसा है? आपका एक्सपीरियंस कैसा है?
हमारे साथ तकरीबन APSS में 200 के करीब लोग हैं ग्रुप के अंदर। उनका इस ग्रुप के आप मेंबर हैं तकरीबन प्रीवियस 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साथ चल रहे हैंगे। तो APSS के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या कैसा लगा आपको, ये एक्सपीरियंस कैसा लगा, और ये आगे वे फॉरवर्ड ये इस प्रोग्राम को हम जो लेके चलना चाह रहे हैं, आपका विजन इसके बारे में कैसा है? So first of all, again, thank you so much कि आपने मुझे आज ये मौका दिया कि इस something which is very close to my heart कि मैं जो मेरी knowledge है, although मैं believe करता हूँ कि I only know what I know is just a drop and what I don't know is an ocean, ठीक है। एंड मैं इस ओशन में जो है ना गोते लगाने की कोशिश करता रहता हूँ, और आज मैं कोशिश ये भी की कि ऐसी जो मेरे ड्रॉप है उसमें से चंद कतरे में और शेयर कर सकूँ। बहुत लोग मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल बैठे हुए हैं, बट ये जो APSS है इसका जो कोर जब हमने स्टार्ट की थी, आई एम द मेंबर ऑफ द कोर कमेटी एंड द ग्रेट लीडरशिप ऑफ कर्नल रिजवान। तो वन ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव वाज टू डेवलप the standards, develop the more the knowledge and training on the security subjects जो हमें नजर आता है कि हमारे जो मुल्क में इतना ज़्यादा हो नहीं रहा। तो ये जो आपने इनिशिएटिव अभी स्टार्ट किया है जो ये फ्राइडे आर का, आई थिंक दिस इज जाइंट लीप। आई थिंक ये हमारा एक फाउंडिंग स्टोन बनेगा। इसको लेके हम आगे फर्दर इस तरह के और भी प्रोग्राम्स कर सकते हैं। आई नो वी डोंट हैव एनी डर्थ ऑफ नॉलेज एंड कैपेबिलिटी अमंग्स आवर सिक्योरिटी मैनेजर्स, तो मोस्ट वेलकम। इस मेरे लिए इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड एक्सपीरियंस कि मेरी नॉलेज थी मैं उसको रिब्रश किया और बहुत सीखने को मिलता है। I think it's a great initiative. Thank you so much, sir, and thank you so much for all. I would like to thank you from our viewers side, from APSS side, APSS complete members, and our core team. APSS will keep bringing in such programs. आपने जिस तरह के कहा, इंशाल्लाह ताला we'll keep these things in mind. Or it was an honor to have you on our session, and it was excellent knowledge which you have shared regarding security and safety, and we really appreciate it, and thank you very much. Most welcome, sir. Thank you so much, sir, everyone. Hello and bye-bye. Allah Hafiz. And viewers, from here I'll check out for today's session of Friday Hour from APSS side, and it was an honor to have you all with us. Thank you very much, and keep watching APSS Friday Hour, and do let us know on our YouTube channel that what you think about APSS, this initiative. Thank you very much. Allah Hafiz.